All right. So yes, ignores counterclaim. Ignores counterclaim means, uh, let me enter all the other people. Okay. So counterclaim means obviously it does not cater the other's opinion. जैसे कि दूसरी टाइप्स ऑफ राइटिंग में क्या होता है कि हम ये सुनते हैं, वही वाली बात है कि वी से दैट however some people believe that this is the right criteria to do, लेकिन but researchers have proven that this is the wrong method, was yeah, this is the method which were followed in the previous ages, now the scenario has been changed, likewise this. ठीक है. अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था, एक एग्जांपल आपको दे रही थी. यस, आई वाज गिविंग एन एग्जांपल कि वो टीचिंग बायोलॉजी के हवाले से. तो इट कुड बी रिटन इन टू वेज. वेदर द फर्स्ट वन इज दैट वी से कि हम कहते हैं कि यस, इन स्टार्टिंग बायोलॉजी शुड बी, you know, is a compulsory thing to be done in the matriculation. I am in the favor of this. Ab, this is my personal opinion. I can write a persuasive text on it by not taking into the consideration that it should be linked with the computer sciences. ठीक है, मैं उस कंप्यूटर साइंस को बिल्कुल इग्नोर कर दूंगी और मैं ये कहूंगी कि नहीं, इट शुड बी डन, इसके ये एडवांटेजेस हैं, ऐसा है, फला है, मैंने भी पढ़ी थी, मेरी अम्मा ने भी पढ़ी थी, मेरे पड़ोसी ने भी पढ़ी थी, यू नो, एक वेग आर्ग्यूमेंट्स, नॉट नॉट वैलिड वंस. तो अब मैं ये सब कुछ इस तरह से बताऊंगी तो इट वुड बी लाइक, एक सेकेंड, यस, इट वुड बी लाइक एंड सॉरी अ परसुएसिव काइंड ऑफ टेक्स्ट. ठीक है. अब उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट ओनली आइडियाज दैट हेल्प एस्टेब्लिश अ पोजीशन, क्योंकि आई एम इन द फेवर ऑफ हैविंग द बायोलॉजी इन द मेट्रिकुलेशन, सो आई वुड only present that ideas which help or which, you know, which strengthen my position, यानी कि जो मैं claim कर रही हूँ उस वो position मेरी strengthen करेगा. Only presents one side, the author side. Whatever my side is, I would definitely be on that line only. Makes claim without evidence. I won't be, you know, including any research reference, any factual detail, any kind of, you know, valid experience, any kind of, you know, the bookish reference, कोई भी जो books का reference होता है, or any, you know, websites or the authors, you know, saying, ये सब कुछ मैं उसको ignore कर दूंगी. But I would say कि भाई मैं ये समझती हूँ, मेरा ये idea है, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा experience किया, और उल्टे सीधे जो होते हैं ना, बस किसी भी तरह से मेरा जो बात है वो कन्वे हो जाए बिल्कुल वैलिडिटी के साथ. ठीक है. Okay, let's move ahead. Argumentative text. So argumentative, this is the same kind of thing with that of the persuasive. So one is the persuasive and the other is the argumentative. You people need to focus on the argumentative text. This is the really very important thing for you people, that all of your questions are comprised on the argumentative approach, not the persuasive one. That is why, means the idea behind telling you that what is the persuasive writing is to make you clear about the argumentative writing. ठीक है. जब तक आपको persuasive का नहीं पता चलेगा, you cannot easily understand the argumentative one. ठीक है. Starting point, identify your topic, research your topic. This is the approach we have studied in the academic writing, if you remember, and decide which side to support. ठीक है. यू नो, फर्स्ट यू नीड टू इस्टेब्लिश. अब लेट सपोज एक आइडिया था, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, जो लेट सपोज, यस, मैंने ये सोचा, आई एम सॉरी, an example, I'm just searching for an example, a good example to write on. जैसे मैंने कहा कि लाइक, ये सब ना इतने देर देर से क्यों आते हैं आप लोग. यस, हमने कहा कि एक क्लेम है कि जो बॉल पेन, द राइटिंग, द बॉल पेन शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस टू द स्टूडेंट्स अंडर मैट्रिकुलेशन. ठीक है. दिस इज अ क्लेम. अब मैं इसके ऊपर आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग लिखना चाहती हूँ. आई एम नॉट, यू नो, प्रपोजिंग
अब मेरा ये आइडिया था, पहले तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, मतलब देयर इजंट एनी डिफरेंस टू यूज इधर अ पेंसिल और द पेन और द इंक पेन और द बॉल पेन, देयर इजंट एनी डिफरेंस। अब मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक। फिर मैंने देखा कि भाई बहुत सारी जगहों पे बॉल पेन क्यों मना किया जाता है, क्या रिसर्चेस कहती हैं, मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, व्हाट इज़ द importance of different types of men in different types of levels, or why this is not recommended in our own domain. What does the research say about this, what does different kinds of scholars say about this. अब मैंने ये देखा कि मैंने पहले तो ये सोचा था, before starting the topic I thought that it doesn't matter, लेकिन after doing research I came to know that there is a huge impact of using ball pen or not on the studies, or or you can say that the writing skills of the students. अब मुझे ये समझ में आया यार, नहीं ये तो मतलब I was wrong before, so I just need to change my side with respect to my evidences when I am composing the argumentative text, because I need to validate my point with the references, with the supporting details, with the researches. So I just need to change my point because this is not my point, it is actually the point, the well accepted point by every other person. So I need to just jot down the details which is widely acceptable. ठीक है, and it is not my opinion but it is the general opinion which should be considered to by everyone. So the purpose is to get the reader to recognize your side of the argument is valid, not just to convince them, but that your your argument is valid, not just the only idea of the writer. There is a calmer tone of just trying to get the reader to acknowledge the author's side is worthy of consideration. Means you say that whatever you are writing should be acceptable by the wise person, means by every other person. It should not be argued on. कोई मुझे बता सकता है एकेडमिक्स में किसी ने इस तरह की एग्जाम्पल देखी हो, मतलब यू कैन यू एग्जाम्पल एनी काइंड ऑफ थिंग which has the argumentative approach in it. नहीं है तो बोल दे नहीं है। खामोश मत नो रहे, मैम, ऐसा लगता है खुद ही खुद से बातें कर रहे हैं। मैम, यस, नो मैम। no, okay, acha, ma'am, let me tell you one thing. In the next class inshallah, I will recommend you to use your laptops for the class and your mobile phones along with you. So we will be playing a game जो कि हमारा ऑनलाइन होता है, मैं कंस्ट्रक्ट करूँगी इंशाल्लाह। So it will be based on the understanding which we have done till now, so that we can have a good interactive session. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अभी से रिमाइंड करवा रही हूँ, और सदीद अगर मैं भूल जाऊँ और मतलब बाकी लोग अगर भूल जाए तो प्लीज़ रिमाइंड देम बिफोर द क्लास। एटलीस्ट मेरी क्लास के लिए ना आप लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन अपने साथ रख के भेजिएगा, क्योंकि मैं अपने पास खोलूँगी, उसको ऑन करूँगी, और आप जो है वो मेरी स्क्रीन देखना ज़रूरी होगा आपको, और प्ले वो है आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं, तो इसलिए बोथ थिंग्स आर नेसेसरी टू यूज़। ठीक है, तो वो ऑनलाइन टॉप टाइप का हमारा गेम होगा। गेम का क्या नाम? मार्क्स होंगे उसके? ना 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 ना, तो सर जस्ट फन के लिए, मैं मतलब सिर्फ इंटरेक्टिव सेशन के लिए, आप खेलेंगे ना बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो वो मार्क्स नहीं, वो सिर्फ रिकॉलिंग करने के लिए कि हमारा पूरा लेक्चर भी रिकॉल हो जाए। एंड अच्छा, आई वोंट बी टेलिंग यू द नेम, इट विल बी मेड ऑन मी। सही है, ठीक है। It will definitely be on the topics we have covered, and वो स्कोर बोर्ड होता है, और उससे फिर जो है वो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास विल डू, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो किस टाइम का होगा। तो मेरी कोशिश होगी कि इन एवरी अदर क्लास आई वुड बी कंडक्टिंग दैट टाइप ऑफ इट विल हार्डली टेक 15 to 10 minutes, बट आप लोग चार्ज हो जाएंगे उससे।
Okay. ठीक है मैम. Miss, जी. Miss, can you please give me one more example of argumentative text? ओके, हाँ मैं जरूर देती हूँ. मैं तो बल्कि आपसे पूछने वाली थी बट यू डिडंट रिस्पॉन्ड, तो आई विल बी गिविंग द आइडिया. देखें, आप यू आर द बिजनेस स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है. सो Yes. यू मस्ट हैव स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है. अब आपने देखा होगा देयर कम्स डिफरेंट रिसर्चेस इन अ सीरीज. एक आया, उसने पिछले वाले को कहा कि नहीं इसकी रिसर्च गलत थी, ये वाली रिसर्च ज्यादा वैलिड है. फिर आए एक सेंचुरी के बाद दूसरे साहब, उन्होंने कहा नहीं पिछली दो रिसर्चेस गलत थी, अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो ज्यादा सही है. फिर उनको क्लेम किया किसी चौथे साइंस जो मतलब रिसर्चर हैं, स्कॉलर्स हैं. तो देयर कम्स अ सीरीज. अब ये क्या होती है, ये आर्गुमेंटेटिव अप्रोच होती है. कैसे होती है? बिकॉज वी से हाउएवर वी से कि जिसने जो पिछली रिसर्च की है उसमें कुछ थी, उसकी स्ट्रेंथ्स थी. ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन उनके फ्लॉज बताकर अपनी नई चीज को प्रपोज करते हैं बाय साउंड रिसर्चेस. ऐसा ही नहीं है कि वो कहते हैं हम ये समझते हैं. नहीं, वो रिसर्च करते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं जो अब प्रेजेंट रिसर्च आई एम प्रपोजिंग इट इज द मोस्ट वैलिड वन, ठीक है, और हैज द मोस्ट वैलिडेशन इन इट. और जो पिछली वाली रिसर्च है उसकी कुछ चीजें अच्छी हैं लेकिन उसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से जो न्यूएस्ट रिसर्च है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है. तो इन एवरी फील्ड, यानी कि वो साइंस की हो, बिजनेस की हो, मार्केटिंग मतलब यानी कि पॉलिटिक्स की यानी कि पॉलिसीज मेकिंग की हो, या हमारी लिटरेचर की हो, जितनी भी रिसर्चेज अब तक आई हैं, टीचिंग के हवाले से हो, जितनी रिसर्चेज आई हैं वो ऑन गोइंग है. रिसर्चेस का मतलब ही क्या होता है? रिसर्च. तो research is actually the researchers do have the argumentative approach in it. वो ये देखते हैं, वो ये नहीं करते कि जो उनके पास सामने है वो पूरा का पूरा गलत है. वो उसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर से फिर वो लूप होल्स निकालते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं. And then they spend time on it, they spend their efforts on it, and then they come up with the conclusion. और समटाइम्स तो उनकी वो भी बेकार चली जाती है क्योंकि दे आर अनेबल टू वैलिडेट देयर पॉइंट. आइडिया रह जाता है उनके दिमाग में. आइंस्टाइन का पता है ना, आइंस्टाइन ने E=mc² का आइडिया दे दिया, लेकिन he didn't have enough time to prove it, ठीक है, जो साइंटिफिकली यानी कि प्रैक्टिकली नहीं प्रूव कर सके. और वो तो टाइम लिमिट का कंस्ट्रेंट था, ठीक है. तो इस तरह से जब तक आप प्रूव नहीं कर सकते किसी चीज को तो आप क्लेम नहीं कर सकते इन द आर्गुमेंटेटिव अप्रोच. मतलब आपको एविडेंस होना जरूरी है आपके बिल्कुल पास. बिल्कुल. यानी कि आप रिसर्च करते हो. अब मैं अगर ये बात कह रही हूँ, मैंने वैसे ही कहा था, एक जैसे जनरल एग्जांपल दूं कि if somebody thinks that the boys are more genius than girls, तो इस पे दोनों Thank Wrong. you, miss. Thank you, miss. Thank you, miss. इस पे Wrong है ये तो. इस पे ना आर्गुमेंटेटिव एंड द पर्सुएसिव बोथ could be मिस the लेकिन इस पे तो बहस होती नहीं है ना. ये तो ठीक कह रही ना आप बिल्कुल. ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना. अब ये इस पे बहस नहीं होती, अब ये बहस नहीं होती, ये परसुएसिव हो गया, खत्म बात, ठीक है. जो हम कह रहे हैं दैट इज राइट. लेकिन अगर मैं आर्गुमेंटेटिव अप्रोच पे जाती हूँ, लेट्स सपोज, तो मैं क्या कहूंगी, मैथमेटिक्स के स्कोर्स निकालूंगी, ठीक है, मैं नंबर ऑफ hours दूंगी, what the boys spend on studies and what they score. And similarly I'll take a sample of the girls. सैंपल ऑफ द गर्ल्स का मतलब सैंपल साइज रिसर्च में होता है 100 लड़कियों का, 1000 का, 5000 का, इट डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है. देन फिर उसकी रिसर्च, देन आई कैन क्लेम कि हाँ दिस इज द वैलिड थिंग. अदरवाइज मेरा वो फिर परसुएसिव वाली होगी जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इमोशनल बेस के ऊपर कोई बात कर रही हूँ. इज दिस क्लियर? Yes. Okay, I'm moving ahead. Okay, techniques of the argumentative that offers facts, reasons and evidence to show the author has valid points. It is not the emotional based but the logic based, acknowledging the opposing claims. मतलब आप इसके अंदर साथ साथ साइड बाय साइड ये लेके चलते हैं. However the person is right, however the counter claim is this, but may compare ideas to itself. Obviously, when you are when you take the opposing claims within your writing, so it means that you are comparing ideas,
But when you compare the ideas, you just need to focus on your main idea. ऐसा नहीं है कि compare ऐसा करें कि जो रीडर हो उसको आइडिया ही ना हो कि आपका पॉइंट क्या है. समटाइम्स ये होता है. ठीक है. प्रेजेंट्स मल्टीपल साइड्स बट इट इज क्लियर विच इज द ऑथर साइड. ठीक है. हम हो सकता है एक चीज के there could be multiple dimensions that कुछ लोग कहते हैं कि ये सही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बीच वाली राह सही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बिल्कुल एक्सट्रीम के तरफ चले जाएं. तो there could be multiple ways sometimes, and you in the argumentative writing you tend to propose the every other dimension in your writing, but whatever your writing is it should be dominant in your writing. Sometimes क्या होता है, let's suppose एक question आया, उसके अंदर लिखा हुआ है the advantages of social media overweigh the disadvantages of using it. ठीक है. अब दो पर्सपेक्टिव है. अब किसी ने ना अब साफ साफ लिखा हुआ है कि you need to focus more on the advantages not on the disadvantages. लेकिन when I start writing disadvantages, मेरे दिमाग में तो disadvantages आ गए. वही वाली बात है, पेन खुला ताकत आ गई, अब लिखना शुरू कर दिया और वो दौड़े जा रहे हैं उसी में ही. अब क्या दिमाग में ये भी आ गया कि भाई टाइम वेस्ट होता है, दिमाग में ये भी आ गया कि जो है वो क्या कहते हैं इसका पढ़ाई पे इफेक्ट होता है, दिमाग में ये भी आ गया कि भाई नींदें डिस्टर्ब होती हैं, दिमाग में ये भी आ गया कि सोशल मोरल वैल्यूज हमारी डाउन हो रही हैं. सब कुछ आ गया. तो अब आपने तो लिख दिया, आपको तो पता था कि आपके पहले दिमाग में क्या था, लेकिन लिखते वक्त आप डिफरेंट ट्रैक पे चले गए. अब रीडर है उसको तो नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ, क्या हादसा हो गया. अब आपने उसको जब रीडर पढ़ेगा वो उस चीज को, तो ही विल ऑटोमेटिकली गेट द आइडिया कि आपने डिसएडवांटेजेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया है. तो यानी कि व्हाट इज योर आइडिया, इट शुड नॉट बी क्लियर इन द राइटिंग. So whenever you have to write the argumentative writing, you need to focus on one thing at a time. ये नहीं है कि आप चार चीजों को validate करते हुए चलेंगे. Always provides evidences with claims. Whatever evidence you are giving, you should use claims to validate them. Okay, this is the comparative analysis of the both writing. देखिए, opinion writing क्या होते हैं जिसके अंदर आप ने कोई ना मतलब पर्पस नहीं है सच खास, तो इसलिए ओपिनियन राइटिंग को तो आप छोड़ दें. जस्ट द पर्पस, द एम इज टू शेयर हिज ओपिनियन और प्रेफरेंसेस, यानी कि आई लाइक दिस एंड दैट एंड धमाका जो भी. इसके अंदर ये नहीं होता कि आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं, कुछ किसी को आप अग्री कराना चाहते हैं. ठीक है. तो ओपिनियन बेस्ड राइटिंग नॉर्मल होती है, इसके अंदर सिर्फ आप जस्ट अपना ओपिनियन देते हैं. इट इज नॉट टू बी focused on yet. So let's compare the persuasive and the argumentative. Purpose, जरा पढ़ के मुझे बताएं what is the difference between both. इसको पढ़िएगा जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ. जैसे एक में वैलिड ओपिनियन होता है और एक में पर्सनल ओपिनियन होता है. में पर्सनल यस पर्पस तो है, लेकिन अब ये देखिए ये आई हैव हाईलाइटेड टू थिंग्स इन परसुएसिव एंड आर्गुमेंटेटिव. कैन यू डिफरेंशिएट अमंग बोथ? बस एक चीज के लिए हम एग्री कर रहे होते हैं लेकिन फोर्स करता है. गुड. और एक्सेप्ट परसुएसिव में फोर्स करना होता है और आर्गुमेंटिव में फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पे एक्सेप्ट करवाता है. वेरी गुड. एग्जैक्ट का मतलब होता है दिली तौर पर आप मुतमईन होकर करें. ये नहीं है कि बस आपको किसी भी तरह से खींच के लेके आया जाया जा रहा है किसी जगह के ऊपर. यू नो बाय हार्ट एंड सोल यू एक्सेप्ट समथिंग. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ. ओके. now the general techniques. What is the difference between opinions and the facts, please? मिस ओपिनियंस तो खुद के होते हैं ना हमारे, कि हमें ये लगता है, ये हमारे, मैं ये समझता हूँ ये होता है. फैक्ट्स तो ये होता है कि कंफर्म होता है कि यार ये फैक्ट है इसका, अगर हमने कोई रीजन दिया तो उसका ये फैक्ट है. Right. Anybody else?
Any example of the opinion or the facts? नहीं, मैं शादी सही बोल रहे हैं, यही होता है। अच्छा, any, let's suppose I'm giving you two sentences. Just figure out whether one is iPhone entered the waiting room. भाई अब ये iPhone कौन सा है? I am not letting him or her enter in the class. ठीक है? ओके मैम। सदीप आप या फारूक कोई भी आप लोगों में से कोई पूछ ले भाई ये कौन साहब है? मिस क्लास में तीन चार के पास है आईफोन। नहीं, आईफोन का मतलब मैंने तो आप लोगों को, इफ यू रिमेम्बर इन द क्लास आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू एंटर इन द सेशन इन द क्लास विद योर एक्चुअल नेम। मैंने कहा था ना, याद है आपको? प्रिंसेस और प्रिंस करके कोई ना आए। मिस बेचारों के पास टाइम नहीं होता ना, ग्रुप देखने का टाइम नहीं होता, बेचारे इतने बिजी हैं। नहीं, ग्रुप नहीं, क्लास में बताया था मैंने, इफ यू रिमेम्बर। पता नहीं हाँ तो सो रहे होते ना, कान बंद सो होते हैं रहे सबके। एग्जैक्टली, सो रहे होते हैं ना। अब ठीक है ना, अब जो भी हैं वो उनको बता दीजिएगा, बाद में पता तो चल ही जाएगा आप लोगों को। अभी इससे पहले कोई 1 2 3 था, पता नहीं कौन था, वो भी मैंने रिमूव कर दिया उनको। ओके, अच्छा जी, ओपिनियन, जैसे मैं कह रही हूँ कि आई थिंक Pluto should not be considered as one of the planet. Is opinion or a fact? ओपिनियन है मिस। ओपिनियन ओपिनियन Opinion है, right? Because अच्छा, फैक्ट है मिस। फैक्ट किसको फैक्ट लग रहा है? फैक्ट लग रहा है? अच्छा, फैक्ट तो वो पबजी खेल रहे ना। फैक्ट तो इसलिए लग रहा है नहीं बेटा, मैं पूरी क्लास ही ले रहा हूँ। नहीं, फैक्ट जो है ना आपको इसलिए लग रहा है बिकॉज यू नो दैट दिस आप इज, खेल रहे होंगे पबजी वगैरह, सही है, हम क्लास ले रहे हैं। एक्सक्यूज मी ज्यादा नहीं चढ़। प्लीज डोंट आर्ग्यू, मिस देखो, मिस देखे मिस ये क्या बोल रहे हैं, पबजी खेल रहे हो फुजूल में, देखा है तूने? लड़ो नहीं यार, लड़ो नहीं। हाँ तो ऐसी बातें नहीं करे ना। ये बोल कौन रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। Okay, yes. So when you say, let's suppose Plato, अब हमें तो इसका पता है ना, इसलिए I'm claiming या we are claiming it as the facts. However, it's the opinion because it is telling that this is yet to be confirmed and it is the idea of a person. When we talk about that there are 8 planets in the universe, this is a factual thing and I am presenting it as the informative or information based sentence. So there's a difference. In persuasive writing, we do have opinions, and in the argumentative writing, we do have different kinds of statistical data, which should Zadeep, can you please message in your private group that whoever iPhone is, he or she has to be entered with the proper name. क्योंकि वो तीन, ओके मैम। पता नहीं कौन है बेचारे, वो 3 दफा आ चुके हैं and I am not letting her or him enter. Yes. So argumentative में आप relevant reasons, credible data are blended to demonstrate. अच्छा, अब यहाँ पर persuasive में आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है opinions are blended with facts, यानी कि facts को ना अपने तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। देखा, ऐसा हुआ, इस तरह के टोन में, सही है, ठीक है। और जो राइटर का पॉइंट होता है वो बस सिर्फ कन्विंस ही करना होता है। ऑडियंस क्या है परसुएसिव में? Persuasive में usually the audience is a group of the people whom we want to target, ठीक है, whom we want to persuade. उसके अंदर ये नहीं होता, मतलब हमें पता है कि this is our target audience and we need to write according to their interest level, सही। But in the argumentative writing, the purpose behind writing is not to convince, is not to make them agree, but it is just to give the factual kind of data. Whether the reader agree or not, they don't mind it. To write an argument, the writer doesn't need an intended audience. मतलब उनको ये नहीं होता कि बस इनको करवाना है कन्विंस, उनको करवाना है, बस उनका मकसद क्या होता है? The writer is satisfied with simply putting the truth out there. मतलब they just, मिस आई थिंक उसामा है, उसामा है उनको कह दिया ज्वाइन कर। हाँ उसामा ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, अब वो अपने नाम से आ जाए ना तो फिर बेहतर होगा, ठीक है।
The writer is satisfied with simply putting the truth out there. ठीक है? So by gathering the information, they are just validating the. अब जैसे मैं कहूँ कि भाई let's suppose COVID-19 की वैक्सीनेशन पे WHO ने कितना काम किया है, तो उसके ऊपर अब आप फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर जाएंगे, ठीक है? आप सर्च करेंगे, आप उसके बारे में पहले डिटेल्स निकालेंगे, then you just write down the things just to give the information to the people. You are not there to make them able to understand or make them able to convince that your point of view is right. ठीक है? Okay. Attitude, persuasion में क्या होता है? Attitude, emotional strategy. ठीक है? Manipulation, motivation, inspiration. Persuasive writing is personal, passionate, emotional. मतलब उसके अंदर वर्ड्स चॉइस ऐसी होती है, ठीक है? तो लाइक सपोज के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल किए हुए होते हैं, या फिर आपका जो है वो क्वेश्चंस बनाए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, इस तरह के जो सवालात होते हैं ना, इस तरह की चीजें इस्तेमाल हुई होती है. Unlike argumentative writers, they maintain a tone of fairness and reasonableness. You know, they just put the valid things on the paper. Please mute your mics. Ehsan. Yes. ठीक है, okay. मैम ओपिनियन राइटिंग का ज्यादा यूसेज नहीं होता? ओपिनियन राइटिंग का ना हम अपने असल में हम अपने पर्सन उसके ऊपर बात करें. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द थिंग्स, लेकिन ओपिनियन बेस्ड जो है ना, दे आर मोर लाइक लेट मी एंटर द स्टूडेंट्स. मानूर भी ज़्यादा ओके. देखिए ओपिनियन बेस में ना सिंपल, इसका कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है. अगर आप बीच में सिर्फ और सिर्फ अपनी ओपिनियन बेस ले रहे हैं, जैसे यू नो जैसे हम कहते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेट्स सपोज, अब इसके अंदर आपने परसुएसिव भी नहीं लिखना, आर्गुमेंटेटिव भी नहीं लिखना, आपने जस्ट एक ओपिनियन बेस्ड राइटिंग लिख देनी है. तो इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कोई इसके अंदर कोई वो नहीं है. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ओपिनियन एज अ सिंगल माइंडेड गोल, टेल द रीडर व्हाट यू थिंक. सिंपल. इसके अंदर आप कोई कंपेयर नहीं करेंगे, आप इसके अंदर कोई फैक्ट्स भी देने की जरूरत नहीं है. इसके अंदर जैसे आपको अपना ही ओपिनियन देना है, तो इसके अंदर बहुत ईजी चीज़ है. इसके अंदर मैं अगर बताऊंगी भी ना, तो वो आप खुद भी समझ सकते हैं. जिस व्हेन आई प्रोवाइड यू दिस लिस्ट, यू कैन इजीली गेट द आइडिया. ठीक है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू. Okay, perspective presented. Persuasion has a single-minded goal. Single-minded get what the writer wants. यानी कि उसमें तो कोई डबल बात ही नहीं है ना, दूसरी तो बात सुननी नहीं है ना, जो बात हमें आ रही है वो वही ठीक है. It is based on writer's personal conviction that his way of thinking is the best. वो अब आपको दिमाग में आ रहा होगा, वो जो illiterate लोग होते हैं ना, उनका बस ये होता है कि बस जो वो सोच रहे हैं that is the right. Consequently, the writer's viewpoint is typically the only one presented. यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही point present करेंगे. Unlike in argumentative writing, which acknowledges opposing views within a pro or con piece, मतलब वो ये कहेंगे कि however there are the multiple benefits of the other side also, but my side is more considerate. Now we can give the more consideration to our own point of view. This demonstrates the writer has a fair-minded person and gives him the opportunity to counter these perspectives with more logic, reasoning and proof. समझ में आई बात? To counter these कौन? जो perspective आपने opposing perspective को mention किया है, उनको devalue करना है किससे? Logical reasoning से, proofs के साथ, साइंटिफिक रिसर्चेस के साथ, या रिसर्च पेपर्स के साथ, स्कॉलरली रिसोर्सेज के साथ. ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट, पिक अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट. व्हाट डू यू वांट? चूज अ साइड टू फाइट फॉर. नो लुक एट दिस फाइट. रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 मिनट्स में बंद हो जाएगा तुम्हारा. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, फाइट. In persuasive writing, you just need to fight for your right. Whatever you think is the right one, and you need to fight for it, and you just need to start it.
But in argumentative writing, you need to conduct initial research on a debatable topic. कोई भी एक debatable topic है जिसकी two sides हैं, and you first need to research on the topic, okay, whether which side is more validate, and align with the strongest side. मैंने यही बताया था ना कि before writing sometimes we think that this is the right way, but when you search on that particular topic, you come up with the other kind of, you come up with the other type of thing. Yes, you can't get enough details about your claim, so you just need to go towards the other point of view, and you just continue gathering facts and research, and then you can write on it. Support. How do you support your writing? Persuasive pieces rely almost solely on opinions and feelings. Okay? The writer uses his own passion. Hold on. Let me tell you one thing, कि भाई this is not the right thing to enter at whatever time you want to be in the class. जब भी आँख खुली उस वक्त आ गए. This is not the Mahir, Umme Roman. Please be punctual. Okay. The writer uses his own passion and plays off reader emotions to get what he wants. The audience agrees with the writer because of strong emotional. Abdul Samad Khalid, matlab. Okay. The audience agrees with the writer because of strong emotional signals. यानी कि वो डालते, मतलब लिखा ऐसा होगा, please Hasnan, don't do this. Annotation जो भी करेगा ना उसका नाम सामने आएगा, तो don't do this. मैंने annotations खुद बंद नहीं किए, मुझे था कि मैं इसमें बोल रहा हूँ ये वाला पार्ट दोबारा समझाएं. तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे. There is no need to do this. Undo करें इसको. Okay. Arguments rely on logical reasons that are all substantiated by facts, data, expert quotes, and evidence. ठीक है, तो इसके अंदर ये सारी चीजें जरूरी होती हैं. The audience agrees with the writer because of the strong logical appeal. तो उनका logical appeal ज्यादा होती है, unlike the persuasive one. अच्छा, जो आप क्या कहते हैं perspective presented में, argumentative acknowledge opposing views with वो कहते हैं कि argumentative writing में आप counter claim को साथ लेके चल रहे होते हैं. जो काउंटर क्लेम होता है यानी कि अपोजिंग क्लेम होता है, उसको साथ लेके चल रहे होते हैं, और उसके साथ फिर आप ये बताते हैं कि दिस डेमोन्स्ट्रेट द राइटर हैज अ फेयर माइंडेड, मतलब वो कोई बायसनेस होकर नहीं कह रहा कि वो जो कह रहा है वो सही है, वो सिर्फ किसके ऊपर, फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर अपने आर्ग्यूमेंट को लेके चल रहा है. दैट इज द वे वी परसीव. ओके, अच्छा, लेट मी टॉक टू द सदीद प्लीज. मैं फारूक और सदीद, आप जब थोड़ा सा मेरे ख्याल से 2-3 minutes लेट आए थे, तो आई आस्क्ड फारूक टू टेक द screenshots of the students who are taking the class, and the attendance would be taking 3 or 4 times during the session, not 4 times but the 3 times after half an hour, after every half an hour. ठीक है, so that I can better mark the attendance of you people. ठीक है, and one more thing is कि I will be giving you 10 minutes break. अभी 5 मिनट ये वाले मैं अभी यहाँ पे end कर रही हूँ, and I will resume my session at 1:25. ठीक है, is it fine? सही है मिस. ठीक है, okay, I am ending this meeting, and please within 2-3 minutes be in the session. देर मत लगाइएगा, and you can use the same link at 1:25 sharp. All right, ma'am. All right, thank you.